ہمارے ساتھ ابو شاکر صاحب ہیں. ابو شاکر صاحب، جی ہاں ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کی ٹیم کو سلام. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک انویٹیشن دیا جائے، کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں مرتد ملحد قرآن کو توڑ مروڑ کے غلط پیش کرتے ہیں، اور یہ الزام ہے آپ کے. میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم قرآن کی آیتوں کو اکٹھے پڑھیں. آج جہاں پہ ہم درست کرنے کی ضرورت ہو، خدا ہمیں درست کرے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ قرآن کی 1-2 آیتوں کو یا 3 آیتوں کو جب موقع ملے پڑھا جائے. یہ انویٹیشن نیا کوئی ہے تو آپ ہر اسٹریم میں آگے کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی آیت لاتے ہیں، اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح کرتے ہیں. ہر ایک بندہ یہاں یہی کرتا ہے جو ہمارا مخالف ہے. یہ نئی بات اس میں کیا ہے؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پہلے سے تیاری کر کے یہ 3 آیتیں ہم ایگزامن کریں گے، تو ہم اکٹھے بیٹھ کے ان کو کریں. کیا آپ کو منظور ہے؟ بھائی ہم اسٹریم اسی لیے کرتے ہیں میرے بھائی، اور مجھے اس کی خوشی ہے کہ آپ اتنی پابندی سے ہم نماز نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے آپ ہماری اسٹریم میں آتے ہیں. یہ ہمارے لیے مطلب بہت اچھی بات ہے یہ. مفتی صاحب آپ میرے اپوننٹ ہیں. اچھا جی، میری ذمہ داری ہے آپ سے پنگا لینا. اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے. خیر یہ انویٹیشن آپ کے پاس ہے. تو جی پچھلی لائف اسٹریم میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہوکس پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ہونا چاہیے، اس سلسلے کو میں بڑھاتا ہوں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ. قرآن پر اعتراض آپ کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. نہیں، قرآن پہ میں اعتراض تو ابھی نہیں کر رہا بھائی. ابھی تو آپ نے کہا 3 آیتیں، وہ کون سی 3 آیتیں کیجیے؟ نہیں، وہ ایسا کریں گے نا، اگلے ہفتے جب میں آؤں گا اگلی دفعہ تیاری کر کے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں تیاری کر کے آؤں گا. نہیں، وہ 3 آیتیں اگر آپ کو پتا ہے تو تیاری ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ گڑبڑ ہے آپ کے نزدیک. تو تیاری تو ہے، پیش کریں. میں ریوائز کر کے مجھے پڑھے. نہیں، آپ کا حفظ نہیں سننا ہے کہ حفظ سنا. آج تیاری میں کسی اور چیز کی کر کے ہیں. اچھا کسی اور چیز کی، ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے. یعنی پرچہ جو ہے وہ غلط ہے آج، اور آپ جو ہے تیاری دوسری کر کے آئے. تیاری دوسری کر کے امتحان جو ہے سائنس کا ہے اور آپ لے آئے میتھ کی تیاری کر کے. ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لاجک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اسلام کے 2 پرمیسز جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے پرمیسز آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو پرمیسز اسلام کا یہ ہے کہ اللہ ہر صبح نیچے ہیونز میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کون چاہتا ہے فرگیونیس. تو اللہ ہر روز آتا ہے. یہ پرمس ہے آپ کا. کیا یہ درست پرمس ہے؟ بالکل. اوکے. ایک دوسرا پرمس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا پرمس جو میں سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، سورج جو ہے وہ ایسٹ سائڈ سے اوپر چڑھتا ہے اور شام کو جب چھپ جاتا ہے. شاکر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلیٹ والی بات جو ہے کچھ زیادہ ہی پرانی ہو گئی؟ مطلب یہ 5 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، تو اس میں نے اس کا جواب دیا 5 سال پہلے. مفتی صاحب یہ Q&A نہیں ہے مفتی صاحب، یہ پرمیسز، یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے. جی لاجیکلی بات ہے. لاجک میں سمجھ رہا ہوں. According to the rules I'm presenting premises. اچھا عامر بھائی ہیں، عامر بھائی آپ آنا چاہیں تو جگہ بنائیں پھر انشاءاللہ. جی بھائی. اس کے بعد جو ہے چھپ جاتا ہے سورج. تو 2 فیکٹس بھی میں آپ کے سامنے، اگر آپ اس فیکٹس کو اگری کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے والے پہ بات کر لیں. پہلے نہیں فیکٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ تو کر دوں. فیکٹ بھائی پہلے والے پہ بات کر لیں. چلو ٹھیک ہے، پہلے بات کیجیے. آپ کا جو پہلا یعنی کوشچن تھا وہ یہ تھا، یا یہ اعتراض کہہ لیں کہ بھائی خدا جو ہے. اعتراض نہیں مفتی صاحب. پھر کیا ہے؟ میرا اعتراض نہیں ہے. پھر کچھ ہے بھی وہ. تو مجھے اپنی پوری پریزنٹیشن کرنے دیجیے نا. جب آپ بیچ میں روک دیتے ہیں. موضوع چلے نا. اب میں کہتا ہوں یہ سچ ہے. بھائی میں آپ کو جب یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالی زمین یعنی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تبھی تو آپ آگے چلیں گے. آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ایک مفہوم گڑھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر اگلا پیرامس بنا دیا. آپ نے کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلا پیرامس جو ہے بالکل ٹھیک ہے، تو وہ تو آرگیومنٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا نا. تو اس لیے پہلا پیرامس کو درست کر لیں کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. تو وہ کس طرح نزول کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس طرح کرتا ہوگا.
नजूल का मतलब क्या होता है? नजूल का मतलब उतरना ही मान लें तो वो डिसेंट, यही तर्जुमा है उसका sunna.com में, जहां से आप उठा के लाए हैं। लेकिन अरबी में तो नजूल ही है ना, आप तो समझते हैं, नजूल के माने नहीं समझते आप? तो आपने कह दिया डिसेंस। अच्छा, अब नुजूल कैसे करता है? आप कोई एक आध कुछ भी कैफियत आप बयान कर दें, कोई भी कैफियत कि इस तरह करता है। देखिए, मैंने तो कुरान और हदीस से नहीं पढ़ा कि वो भाई मैं आपसे ये कहूं कि अल्लाह ताला ने नुजूल किया, तो आप कुछ तो उसकी कैफियत बयान करेंगे कि हाँ इस तरह किया, उस जीने से उतर कर आया, लिफ्ट से, एलिवेटर से नीचे आया, छलांग लगाई, ये सारे नुजूल हैं। तो कौन सी कैफियत आप मानेंगे? मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। ये यही रेलेवेंट है हमारे लिए, यही रेलेवेंट है। चलिए ठीक है। फिर जब आप किसी चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि इसने नुजूल किया, तो लामहला जहन में ये बात आती है कि कैसे किया, यही हमारे लिए रेलेवेंट है। और आप चूंकि हमारे मुकदमे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, तो जो चीज हमारे लिए रेलेवेंट है ना, उसको ही लेकर चलेंगे। आप अपने हिसाब से रेलेवेंट और इररेलेवेंट का फैसला नहीं करेंगे, हमारे एतबार से करेंगे। मैंने आपसे आगे ठीक है, आ गए। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये परमिस जो मैंने आपको बताया है, मैं तो अभी भी उसको सही कह रहा हूं कि अल्लाह ताला नुजूल करता है। तो मैंने आगे बढ़ते हैं ना? नहीं, आगे रुक जाइए, कैसे करता है पहले इसको तय करेंगे, कैसे करता है वो बताइए। आप कोई भी एक चीज तय कर लें कि भाई वो कूद के करता है, छलांग लगा के करता है, एलिवेटर से नीचे आता है, जीने से आता है, चल के आता है, किस तरह आता है। आप इसमें से कोई एक, भाई यही तो तरीका है ना, इसके अलावा कोई और अगर मैंने मिस कर दिया तो आप बता दें कि ये वाला तरीका मिस हो गया। मेरे लिए कोई भी तरीका ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स डूएबल। एक मिनट, आसिम भाई किधर चले गए भाई? अच्छा, तो आसिम भाई को पूछे अगर वो नहीं है, अच्छा इशू हो गया उनका शायद उससे। अच्छा जी भाई, तो बताइए कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? जी उनका मैसेज आया था तो कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। ओके जी, कौन सा तरीका आप इख्तियार करेंगे? मेरे लिए तो ये अनइम्पोर्टेंट है, ना ही मैं जानता हूं। मेरे लिए, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें आप। नहीं, तो आगे नहीं बढ़ सकते ना जब तक कि ये तय ना हो जाए कि वो नुजूल किस तरह करता है। तो फिर आप बता दिए। मैंने तो कुरान में पढ़ा है ना सुन्नत में पढ़ा है। अगर उसका हवाला दे के आप बता दे तो मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। हमारे यहाँ ये भी तो उसूल है ना कि लैसा कमिस्लिही शै, ये तो पढ़ा होगा कि उस जैसा कुछ नहीं है। तो जो भी नुजूल का आप तरीका बताएंगे ना कि इस तरह आता है, उस तरह आता है, उस तरह नहीं आता। ठीक है भाई, थूके वूके मत, ये क्या किया आपने भी तो। हजरत गुस्सा पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप जो है कोई भी तरीका बताएंगे ना, वो उस तरीके पर नुजूल नहीं है। अब किस तरीके पर है यह ना मुझे पता, ना आपको पता, ना दुनिया के किसी शख्स को पता, चूंकि अल्लाह ताला का नुजूल जो है वो बिला कैफियत है। हम खुदा के नुजूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत नुजूल पर ईमान रखते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे आता है वैसे नहीं आता, जीने से आता है, एलिवेटर से नहीं आता, किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि नुजूल, हम जो मानते हैं वो ये है, मैं अपना बता रहा हूं कि नुजूल खुदा की एक सिफत है और उसकी किसी भी सिफत की तफसील को आप बयान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर खुदा का इल्म कितना है जरा बयान करके दिखा दे कोई दुनिया का माइकलाल। खुदा का इल्म क्योंकि वो महदूद नहीं है, गैर महदूद चीज को आप बयान नहीं कर सकते। खुदा की हयात कैसी है कोई बयान करके दिखा दे, सिवाय इसके कि वो हयात है, बाहयात है। आप खुदा की कुदरत कामिला को और उसकी जो एब्सोल्यूट पावर है उसको बयान नहीं कर सकते, चूंकि किसी भी अनलिमिटेड और इन्फिनिट चीज को मुकम्मल तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप बयान करेंगे वो लिमिटेड हो जाएगी। तो जब खुदा की कोई भी सिफत मुकम्मल तरीके से बयान नहीं की जा सकती, तो खुदा का जो नुजूल है उसके वो भी बयान नहीं किया जा सकता। हम खुदा के नुजूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन बिला कैफियत ईमान रखते हैं। और जब उसकी कोई कैफियत तय नहीं की जा सकती, तो आपका जो अगला जो प्रेमिस है वो यहीं से इर्रेलेवेंट हो जाता है। जी, अब आप अपना इर्रेलेवेंट प्रेमिस पेश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है जो साइंटिफिक फैक्ट है, वो ये है कि जो जमीन है वो स्फेरिकल है, वो अपने एक्सेस की तरफ घूमती है। दिन रात सुबह शाम 24/7 आवर्स का फिनोमेना है। अगर हम इन फैक्ट्स को पहले परमिस पर अप्लाई करते हैं, कर ही नहीं सकते। अब बात ही खत्म हो गई, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही अपना अब अगला प्रेमिस करेंगे ना, वो वही इररिलेवेंट हो जाएगा। अब आप जमीन को मानो चाहे फ्लैट या स्फेरिकल, किसी भी तरीके से आप माने, नुजूल के माना अगर आप ये करेंगे कि वो इस तरह उतरता है और उस तरह नहीं, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे एतकाद के खिलाफ होगा, क्योंकि नुजूल की कोई कैफियत है नहीं। मुस्तफा, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूं टू शाइन 2 मिनट्स
उसको भी आप मध्यम कर देते हैं जी। वो असल में हमारा काम ही ये है कि हम सामने वाले की दलीलों को गुल करने के लिए बैठे हैं जी। हाँ, उससे पहले सुन लीजिए, गुल बाद में कीजिए। अच्छा, अगर तो मैं इसे लॉजिकली पहले पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह जो है वो डिसेंड नहीं कर सकता, अगर डिसेंड कर लिया तो वापस नहीं जाता। सो इसलिए दूसरा जो मॉडल है, जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, जो वो ज्यादा सही है। जो कुरान का जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह डिसेंड कर सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह जो है असेंड करके अपना वापस चला जाता है। तो ये जो कुरान की ये परमिसेस है कि अर्थ फ्लैट है, ये सच है। दूसरी चीज, एक मिनट रुक जाइए। अब मैंने पहले क्या कहा, आपका पहला प्रेमिस हो गया गलत, ठीक है। वो इसलिए कि नुजूल किसी भी कैफियत के साथ आप नुजूल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो कि खुदा की नुजूल पर हम बिला कैफियत ईमान लाते हैं। कोई भी दुनिया की आप कैफियत सजेस्ट कीजिए, ये बैठेगा नहीं सही, ठीक। अब जब दलील आप दें, आर्ग्यूमेंट दें, उस आर्ग्यूमेंट में 2 या 3 या 4 प्रेमिसेस हों और पहला प्रेमिस वही गलत हो जाए, तो क्या बकिया प्रेमिसेस रेलेवेंट रहते? नहीं रहते। लिहाजा आपकी पूरी दलील हवा हो गई 1 सेकंड में। नहीं, ये तो अल्लाह खुद कह रहा है ना कि वो असेंड करता है। बताया ना, उसने कैफियत तो नहीं बयान की ना, उसने कैफियत नहीं बयान की। असेंड कर, उसकी जो कैफियत है, नुजूल है, वो उसकी सिफत है। हम उसकी सिफत पर बिला कैफियत ईमान लाते हैं, जिस तरीके से उसके इल्म, सिफत इल्म पर, सिफत खल्क पर, सिफत तकदीर के ऊपर, तमाम सिफतों पर बगैर किसी कैफियत के ईमान लाते हैं। तो मेरे मुताबिक फ्लैट अर्थ पे बिल्कुल फिट करता है। वो आपके मुताबिक करता होगा ना। हमारे एतबार से तो अगर कोई कैफियत हो जाती खुदा की तय के इस तरह उतरता है, तो ये सवाल होता कि भाई फ्लैट पे उतरता है कि स्फेरिकल पे उतरता है। हमारे यहाँ ये सवाल आता ही नहीं है, चूंकि हम नुजूल को किसी कैफियत के साथ मानते ही नहीं है। तो ठीक है, आज का जो सेशन है लॉजिक का, तो अगली दफा मैं फिर पहुंच जाऊंगा, बहुत है मेरे पास। नहीं, वो बहुत, जितने भी हैं वो लेके आएंगे। सारे आपके जितने तरकश में तीर है ना, वो हमारे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सा तीर निकालेंगे, इसलिए आपकी दलील मुकम्मल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ जाता है। मेरे पास मुफ्ती साहब, हमें तो बमों की आदत हो गई है, तीर क्या चीज है? ओके मुफ्ती साहब, बड़ी खुशी हुई से आपसे बात करके। चले जी, शुक्रिया। ओके, बाय।